کے بعد صفا بیت المال شاپ چنچولی یعنی گلبرگے ضلع ہی کا ایک علاقہ ہے، تعلقہ ہے چنچولی. وہاں پر حافظ محمد اسماعیل صاحب اپنے رفقا کے ساتھ دفاعی فلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ انہی کی زبانی اس شاپ کی رپورٹ کو آپ سن سکتے ہیں. میں حافظ محمد اسماعیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صفا بیت المال شاپ چنچولی کی رپورٹ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے حضرت والا سے معذرت خواہی چاہتا ہوں کیونکہ میں پورے سال حضرت والا کو اپنے برانچ میں نہیں بلا سکا. معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں آگے بلاؤں گا. آپ نے چنچولی کی رپورٹ گزشتہ سال سنی تھی، میں کارگزاری سناؤں گا. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما السائل فلا تنہر. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے ناچیز کو صفا بیت المال میں داخل کیا. میں نے سال اول میں بنگلور کے اندر ایک بات کہی تھی کہ صفا بیت المال کو چنچولی میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. میں نے وہاں پر یہ بات بتائی تھی جس کی بنیاد پر حضرت والا نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے علاقے میں کام کریں. پھر جب دوسرے سال میں نے بنگلور کے اندر صفا بیت المال کی چھوٹی چھوٹی کارکردگیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن صفا بیت المال شاپ چنچولی کو بلند مقام پر پہنچا رہا ہے. یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور لوگوں کی دعائیں بھی ہیں. سب سے پہلے میں اس بات کی طرف لے جاؤں جو آج سے 2 یا 3 سال پہلے میں حیدرآباد جب گیا تھا تو میرے ساتھی ایک ملک پیٹ میں رہتے جن کا نام حافظ نصیر ہے. میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ بھائی میں صفا بیت المال میں مل رہا ہوں، آپ کی نظر میں صفا بیت المال کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں. اس طریقے سے شک کی بنیاد پہ بھی ایک بات پوچھی جانی چاہیے اور اگر شک ہو تو پوچھنا ہے ورنہ نہیں. تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ میں جو سمجھتا ہوں شاید کہ صفا بیت المال کے جس جگہ پہ برانچز ہے تمام کی تمام جگہوں پر بھی لوگ وہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچتا ہوں. جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ اگر میں آج صفا بیت المال میں اگر 1 روپیہ یا پھر میں اپنا بیکار سامان بھی اگر صفا بیت المال میں دیتا ہوں تو میرا وہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا، میرا وہ پیسہ بیکار نہیں جائے گا. یہ مجھے یقین ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ بات کہہ کر میرے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ میں لگاتار پہلے بھی لگا تھا بیت المال کے اندر، لیکن ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک جذبہ ابھرا. یہ وہاں کی بات ہے. پھر اس کے بعد گزشتہ سال جب میری کلپ لوگوں نے دیکھی تھی تو کچھ چنچولی کے احباب نے کچھ کہا تھا کہ ایک بات آپ نے کلپ کے اندر ویڈیو کلپ کے اندر ایک بات آپ نے کہی ہے، وہ بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئی. پہلے اس بات کی طرف اشارہ دلا دوں گا. میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو آدمی امانت کو امانتی کے طور پہ اگر خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے. یہ بات میں نے کہی تھی. مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کے نام پر اگر پیسہ دے یا پھر پانی پلانے کے نام سے پیسہ دے یا پھر زکوٰۃ کے نام سے پیسہ دے یا پھر رمضان راشن کے نام سے پیسہ دے، خرچ کرنے والا آدمی اسی کی نیت کے موافق اگر اسی کا پیسہ اسی کے کام میں اگر لگائے گا تو اس آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا جو آدمی پیسہ لگا رہا ہے. مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی آپ نے یہ بات کہی تھی، میں نے یہ داستان میں سنا تھا. یہ بات میری کلیئر ہو گئی. پھر اس کے بعد میں آپ کو شاپ چنچولی کی وہ کارگزاری سناؤں گا. یقیناً آپ گزشتہ سال بھی مطمئن ہوئے ہوں گے، یہ مجھے یقین ہے کیونکہ ہر جگہ صفا بیت المال پروان چڑھ رہا ہے، اونچائی پر پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید ترقیات سے نوازے. جانے کے بعد ہم نے سب سے پہلے وہی پانی کا انتظام کیا. گزشتہ سال ہم نے اس مقام پر کیا تھا جہاں پر کوئی چیز نہ تھی، لیکن اس سال ہم نے لوگوں کا بار بار یہ اصرار تھا کہ آپ
ज्यादा बाहर देहातों पर काम क्यों करते हैं? मैंने गुज़िश्ता साल भी यही बात कही थी कि हम मेडिकल कैंप वगैरह अपने देहातों में नहीं लगाते, अपने चिंचोली चंदापुर वगैरह में नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स है, लोकल मोबाइल क्लिनिक होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्लिनिक नहीं लगाते। हम ऐसी जगह पर मेडिकल कैंप लगाते हैं जहाँ पर बसेस, ऑटोस या फिर रास्ते, अगर किसी एक आदमी को भी अगर उस देहात में अगर मिलना है तो पूरा का पूरा आपको एक दिन लगेगा एक आदमी को मिलने के लिए, क्योंकि सहूलियत वहाँ पर फराहम नहीं होती। तो हमने पानी का इंतजाम लोगों के इसरार पर चिंचोली के अंदर उसी बस स्टैंड के अंदर इंतजाम पानी का इंतजाम किया। और दूसरा काम हमने नया जो साथ में हमारे बेवाओं में वज़ाइफ देने का ये काम नहीं था। मौलाना नज़ीर अहमद साहब रशादी के हाथों एक बार इफ्तिताह हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना 10 बेवाओं में माहाना वज़ाइफ जारी है। इसके बाद हमने गरीब लड़कियों की शादी में जुज़वी इमदाद की है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़रूरत है सामान फराहम किया जा सकता है, क्योंकि चिंचोली ब्रांच बिल्कुल छोटा है। और इसके बाद हमने नेपाल के लिए भी फंड रवाना किया। इसका तरीक़ेकार हमने ये बनाया था कि हर मस्जिद के अंदर एक गल्ले रख दिए थे और लोगों के दरमियान ये ऐलान किया था, मस्जिद के इमाम साहब से कहा था कि आप ऐलान कीजिए कि नेपाल को सफा बैतुल माल की जानिब से फंड रवाना किया जा रहा है। तो तमाम मसाजिद के, चिंचोली के जितने मसाजिद हैं तमाम के तमाम साहिब खैर ने ताउन किया और हमने नेपाल के लिए भी फंड रवाना किया। देहातों में मुफ्त मेडिकल कैंप भी हम मुनक्किद किए हैं और बाज़ जगहों पर वाटर फिल्टर जैसे मसाजिद है, मस्जिद हुदा के अंदर हमने वाटर फिल्टर भेज दिया था, अब वो वहाँ पर मौजूद है। फिर इसके बाद हमने 15 अगस्त के मौके पर गुज़िश्ता साल में हमने यही काम किया था कि जो लोग रेगुलर स्कूल को आते हैं, हर दिन हाजिरी पाबंदी देते हैं, उनको सबसे पहला इनाम, बाद में पढ़ने वाले का इनाम। इस तरीके से हमने कुल मिलाकर लगभग 165 तलबा में तालीमी किट तकसीम किए हैं। फिर इसके बाद तादलापुर नामी देहात में मस्जिद के साहिब खैर ने कहा था कि आपका जो बैतुल माल है, कुछ काम अगर आपसे गुंजाइश हो तो आप हमें कुछ इमदाद कर सकते हो तो करें। तो उन्होंने जब बैतुल माल का सफा बैतुल माल शाख चिंचोली का मकसद क्या है मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि जब भी सफा बैतुल माल का नाम लेकर सफा बैतुल माल शाख चिंचोली में हाजिर होता है तो हम उसे खाली नहीं छोड़ते, या तो वो देकर जाता है या तो वो लेकर जाता है। अब तक बैतुल माल में ऐसे कोई आदमी नहीं आया कि वो सिर्फ बोल कर गया है, या तो वो देकर गया है या तो फिर लेकर गया है। तो रमजान राशन पैकेज, इसके बाद हमने रमजान में राशन पैकेज की तकसीम की। गुज़िश्ता साल मरकज से कुछ हमें इमदाद की गई थी, लेकिन इस साल चिंचोली के पूरे अहबाब ने बढ़ चढ़कर पूरा हिस्सा लिया। जितना टारगेट हमने बनाया था, जितना टारगेट हजरत वाला ने एक मरतबा में बताया था कि आप कम से कम 50 लोगों में तो रमजान राशन पैकेज तकसीम करो, तो हमने 54 लोगों में, 54 बेवाओं मुस्ताहिकीन में रमजान राशन पैकेज तकसीम किए और उसका एक ही दिन हमने ताउन लिया। एक ही दिन में अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में कितना इमदाद ली जा सकती है। हमने एक ही दिन में 34,000 से ज़ायद रुपए वसूल किए। फिर इसके बाद बकरीद का जब मौका था तो ईद के मौके पर हमने मदरसे दारुल हुसैनिया और दारुल तजवीज़ुल कुरान वगैरह में बच्चों के कपड़े के लिए भी इंतजाम किया था। अब रही एक बात, इतने साल से जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा कोई ऑफिस नहीं था, हमारा कोई ऑफिस भी नहीं था, लेकिन अल्लाह का करम है कि इस बार अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे 3 ऑफिस, एक स्क्रैप जिसके अंदर हम डालते हैं, दूसरा हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं, तीसरा एक ऑफिस है जहाँ पर पाबंदी से एक बच्चा बैठा हुआ रहता है। उस बच्चे का काम भी क्या मैं आपको बताऊंगा। बैतुल माल के अंदर हर दिन सलाम को करना है, 100 लोगों को सलाम करना है, डेली 100 लोगों को ये बताना है कि हम बैतुल माल से आए, लेना किसी से नहीं, लेकिन सलाम की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीने के अंदर 15,000 रुपए बैतुल माल के अंदर जमा हुए। हर दिन लोगों को याद दहाने के लिए कि सलाम को फैलाइए,
आपस में मुलाकातें करना, आपस में मिलना, इस तरीके से मिंबर शादी की जाती है। लेकिन मिंबर शादी का तरीका अलग है। मिंबर शादी के लिए हर दिन आदमी पाबंदी से पैसे देता है, लेकिन जो गुज़िश्ता साल मैंने आपसे कहा था कि 1 रुपया वसूल किया जाता है, लेकिन आज उस 1 रुपये को बढ़ाकर 5 रुपये किया गया है। लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाला गया, लोगों की मर्जी के मुताबिक बैतुल माल में जो आदमी पैसा जमा कर रहा है वो 1 रुपया नहीं बल्कि 5 रुपया आप दे, तो उस बच्चे को अलग ही रख दिया गया है कि आपको हर दिन 100 लोगों को सलाम करना है और एक बच्चे को हर दिन लोगों से 5 रुपये वसूल करना है, सिर्फ सलाम करना है। वल्लाह ये मुझे अच्छा दिखा, क्योंकि सलाम फैलाना है, ज्यादा लोग उससे जुड़ते हैं और हकीकतन में इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऑफिस का मसला था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर सहूलियात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि ऑफिस का किराया कुछ मसला था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया और एक ही बड़ी जगह पर ऑफिस रखी गई और एक गोदाम के लिए रखा गया। इस तरीके से अब ऑफिस एक है और एक स्क्रैप जो डाला जाता है वो एक गोदाम है। स्क्रैप का कलेक्शन ऐसा होता है हमारे पास कि हम एक बार गाड़ी को घुमाते हैं तो बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपए का स्क्रैप वसूल होता है, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि छोटे देहाते हैं, आपको बखूब जानते हैं कि चिंचोली छोटा देहात है। इस तरीके से कुर्बानी का जब मौका आया तो कुर्बानी के मौके पर हमारे नुमाइंदे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। तो 35 देहातों में 80 वॉलंटियर्स 10 ऑटोज के जरिए गोश्त को पहुंचाया गया 35 देहातों में, और 1500 गरीब खानदानों के घरों तक गोश्त मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंचाया गया। चिंचोली के हर उस देहात में जहां पर कुर्बानी नहीं होती है, पहले उस देहात को हम टारगेट बनाते हैं कि पहले इस देहात में पहुंचना है। हर एक का अलग अलग रिवाज है, अलग अलग तरीका है, लेकिन सपा बैतुल माल शाह चिंचोली अब जब भी हम देहात को बेचते हैं, मुझे पहली मरतबा एक फोन आया कि हाफिज साहब अभी हम ईदगाह में हैं, आपका गोश्त गांव में आकर रुक गया, अभी हम नमाज पढ़कर आपका गोश्त बांटेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर काम आसानी के साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सहूलियत के साथ और बखूबी निभाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान व करम किया। इसके बाद हजरत वाला ने रबीउल अव्वल के मौके पर हैदराबाद के अंदर एक मुहिम चलाई थी कि शऊर बेदारी मुहिम। इसी के पेश नजर सपा बैतुल माल शाह चिंचोली हर दिन एक देहात को जाने के लिए तय हुआ कि हर दिन एक देहात जाएं, हर दिन एक देहात में ही सर्वे करें, एक देहात का जायजा लें। तो हमने इस महीने कुल मिलाकर 6 से 8 देहातों का हमने सर्वे किया है और वज़ाइफ से बेहतर हमें ये मुनासिब हुआ कि इनके घर रमजान, इनके घर राशन वगैरह का इंतजाम किया जाए, जो हर दिन वो खा सके, रह सके। एक घर हम गुज़िश्ता हफ्ते हम एक गांव गए थे, हसनगुंडी नाम है, जहां पर हर दिन जल्जले के झटके वगैरह महसूस किए जाते थे, लेकिन अब वो कुछ कमी आई है, बखूबी आप जानते हैं। हम उस देहात को भी जाने के बाद वहां पर देखा कि हर घर टीन शेड का, कोई घर पक्का तामीर नहीं, बहुत कम घर हैं जो पक्के तामीर हुए हैं। लेकिन उस घर में जाकर हमने जायजा लिया तो बड़ी मुश्किल से हमें 2 या 4 सामान उसके अंदर मैसर हुए, बाकी कोई चीज उसके पास मैसर न थी, ना खाने की चीज है, ना रहने की है। और एक बेटा है, उम्र दराज है, वो अपाहिज है, और एक बूढ़ी माँ है। ये दोनों अपने किसी दिए हुए से खाते हैं और दिए हुए से लेते हैं। तो इस तरीके से सपा बैतुल माल शाह चिंचोली सबसे ज्यादा हम इस पर तवज्जो दे रहे हैं कि हर उस घर का जायजा लें, हर उस घर को टारगेट बनाएं जो घर हकीकतन में मुस्तहिक है। एक तो बेवाएं वज़ाइफ जिनको दिया जाता है, ये तो ऑफिस को आकर दफ्तर पे पहुंच कर लेते हैं, लेकिन बाद लोग अपाहिज है, माजूर है, इनके पीछे कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं है। तो इन हजरात को हम बखुद पहुंचाने का हमने ये बेड़ा लिया है, ये बेड़ा उठाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हर महीना 5 मुस्तहिक अपाहिज लोगों में राशन पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए। कुल मिलाकर हमारा सालाना खर्च गुज़िश्ता साल मैंने आप हज़रात के सामने 1,64,000 की जो रिपोर्ट सुनाई थी, लेकिन इस साल 2,61,000 तक अल्लाह तबारक व तआला ने 1 साल के अंदर हमें एक कदम आगे बढ़ाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें
بخوب کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس سال آفس کا کرایہ وغیرہ آنے کی وجہ سے جس کے کیا بولتے فنڈ میں جمع ہونے کی کچھ کمی پیش آئی، لیکن یہ رفتہ برفتہ یہ بالکل کم ہو جائے گا، اور صفا بیت المال شاپ چنچولی پوری اپنی خدمات کو بخوبی نبھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی اسماعیل صاحب نے کم وسائل کے باوجود شروع ہی سے ہمت سے کام لیا اور ماشاءاللہ اچھا کام اپنے علاقے میں کر رہے ہیں۔